Jews in America for the first 500 years. इस बुक में उस जमाने में छपे हुए बहुत सारे कार्टून हैं. You can see here an Israeli refugee who is standing on the door of United States of America. और United States of America के लोग कैसे ट्रीट करते थे इन Jews refugee को. This one cartoon can summarize it. उस जमाने में ऐसे बोर्ड लगाए जाते थे that no Jews, no dogs. Dogs and Jews are not allowed. And this kind of the boards can be seen not only on the beaches, not only on the colleges, not only on the banks, everywhere the Jews were not wanted. फार्म्स पे लेबर के लिए जो सबसे निचले क्लास का लेबर होता था, even there also the Jews were not allowed. And the Americans, they used to hate Jews like something. फिर उनका एक रबाई था who is very famous in the history. That rabbi changed something. उन्होंने कुछ चेंज किया और जो ऐसा कुछ चेंज किया that today it's like upside down. एक चीज जो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूं that I see in this community that when we are also going through the same phase, हमारी भी हालत बहुत अलग नहीं है. A large number of educated rabbis of our qawm, they are organizing a large number of webinars and seminars and books and the notes are being circulated कि हम इस पोजीशन से बाहर कैसे आ जाए. यहाँ मुझे सीरत का एक किस्सा याद आता है. जंग में कैद होकर आए प्रिजनर्स ऑफ वार्स जो ज्यूज थे, अल्लाह के रसूल ने उनको इस बात पर जमानत दे दी कि अगर एक एक ज्यू 10-10 मुसलमानों को पढ़ा दे, वो क्या पढ़ा दे उस वक्त, और इस वक्त हमें उनसे क्या पढ़ना चाहिए. उनसे जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं, उन बेसमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, उन स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं. क्या हम यहाँ बैठकर अपने रब के सामने दुआगो होकर उनसे कुछ सीख सकते हैं? That is the webinar जो हमें इतने सवेरे यहाँ खींच कर लाया. Now I would like to start from Quran and the topic today is this, that what Israel can teach us. Israel हमें क्या पढ़ा सकता है? How Israel and China they converted their curse into blessings. आज चाइना के लिए तो मौका नहीं है, लेकिन चाइना एंड इसराइल वर्ल्ड हिस्ट्री में ये दो ऐसे नेशंस हैं जिनकी हालत इस कदर खराब थी that you can't imagine. But today they are the rulers of the world and China is de facto the new superpower of the world. क्या हम ऐसा कुछ कॉपी करके अपने देश इंडिया में लगा सकते हैं? Can we be responsible for taking our country ahead? Are all the lessons that we are supposed to look today? So इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपा की उस बात को इसमें लेते हैं that what we as an ummah within the decided boundaries of Islam can learn from it. हम उसमें से क्या सीख सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूं आज का लेक्चर सूरह आले इमरान की आयत से, आयत नंबर 139. Do not weaken and do not grieve. Do not lose heart or feel aggrieved. मायूस मत होना, अपना दिल टूटने मत देना. And it is you who will be victorious, provided if you maintain the perfect faith. इस आयत की जरूरत हमें आगे बहुत पढ़ने वाली है हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को समझने के लिए. So do not weaken or do not grieve, और अपना हार्ट लूज मत करना. आयत नंबर 139 कहती है that if you have received a blow, अगर तुम्हें कोई वुंड लगा है, then remember that they too, उन्हें भी ऐसा वुंड लग चुका है. If you have received a blow, अगर तुम्हें कोई जख्म है आज, then the same kind of blow have been received by them already. उन्हें भी ऐसा जख्म लग चुका है. क्यों? अल्लाह पाक कहता है these are the days which we rotate. ये वो दिन है जब हम कौमों के दरमियान घुमाते हैं. And these ups and downs they occur. ये उतार ये चढ़ाव इसलिए है क्योंकि अल्लाह में distinguish the identity of true believers and bestow upon them the status of shahadat, witness, ताकि वो देख सके. And Allah does not like the wrongdoers. वो अल्लाह की राह में कोई काम करे, जद्दोजहद करे. These are the ups and downs. These are the days that we rotate. और अगर तुम्हें कोई जख्म लग चुका है तो उन्हें भी इससे पहले ऐसा ही एक जख्म लग चुका है. What lessons can you derive
is what is Quran pointing us. एंड अल्लाह पाक कहता है कि 141वें आयत में कि दिस इज विद एन इंटेंशन, ये सब किया जाता है विद एन इंटेंशन दैट अल्लाह में ब्रिंग मोर रिफाइनमेंट टू द बिलीवर्स. इट कैन क्लींस यू, प्यूरिफाई यू, आपके दिलों को साफ करे, दिलों की मजबूती देखे, क्योंकि जाना बहुत दूर तक है. इस सफर में वही शामिल हो whose heart has been purified, whose hearts have been cleansed. And then the last ayat, before I start drawing the lessons, is this. और तुम्हें क्या लगता है? Do you assume that you will enter paradise without any good? समाज के लिए, अपने देश के लिए, कौम इंसानियत के लिए बिना कुछ अच्छा किए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? Whereas Allah has not tested you, अभी तक तो हमने टेस्ट भी नहीं किया. तुम में से कौन है जो जद्दोजहद कर सकता है? And Allah has not yet judged the steadfast. अभी तक तो हमने steadfast में तुम में से नहीं देखे. Now this आयत को बैकग्राउंड में रखते हुए I wanted to see how Israel and China they converted their curses into blessings. What to learn from them and what not to learn from them. तो वर्ल्ड वार 2 में 1939-1945 में जब मैं IAS में एक दिन लेक्चर पढ़ा रहा था ये वाला, तो मुझ पर ये 4 आयतों की तफसीर खुली. और सूरह यूसुफ की एक आयत है जो मैं लिख कर लाया हूं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जिसको जितना इल्म दिया उसने उस कदर कुरान को समझा, उसने उस कदर कुरान को समझा. तो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी इकोनॉमिकली डिवास्टेट हो गया था, जर्मनी पूरी तरह टूट गया था, जर्मनी के लोगों में गुस्सा था बिकॉज देयर वाज अ ब्लेम ऑफ वार ऑन जर्मनी, जर्मनी पे ब्लेम ऑफ वार था. और जर्मनी की लैंड को छीन लिया गया था, उससे बहुत सारी हैवी पेमेंट्स ली गई थी, उससे हर चीज के लिए गुनाहगार ठहराया गया था, जो कि बहुत हद तक सही भी था. तो इस गुस्से को भुनाकर एक बहुत बड़ा रूलर तानाशाह जिसे हम हिटलर के नाम से जानते हैं वो राइज हुआ. जिसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम आज नाजी पार्टी है. हिस्ट्री में इनका किया बड़ा फेमस है. ये एक छोटी टाइनी पार्टी थी लेकिन एंगर को माइक्रो मैनेज करना जानती थी, डाइवर्सनरी टैक्टिक्स जानती थी, इल्जाम लगाना जानती थी, हर उठते सवाल को किसी एक की तरफ मोड़ना जानती थी. इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड्स यू कैन सी इवन इन टुडे. इसीलिए ऐसा कहते हैं दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. और नाजी पार्टी ने ज्यूज के साथ हर वो चीज की और 10 टाइम्स मोर की जो आज ज्यूज हमारे साथ कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा नाजी पार्टी ने ज्यूज के साथ किया है. हिटलर जब पावर में आए तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू पनिश दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल. तो उन्होंने एक ज्यूज के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड एंटीसेमिटिज्म. आज आपकी दुकानों को बॉयकॉट करने के मैसेजेस सोशल मीडिया पे घूमते हैं. उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो ज्यूज की दुकानों के बाहर नाजी के फौज जो थी, नाजी पार्टी जो थी, वो खड़ी हो जाती थी ये बोर्ड लेकर, Germans don't buy from Jewish store. They used to block the entrance. वो एंट्रेंस ब्लॉक करते थे. आज इजराइल कहां पर पहुंचा है, इस बात को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा वो उठे कहां से, क्योंकि सारा इंस्पिरेशन, सारा प्रोग्रेस इसी को समझने में है कि कौमें उठती कैसे, कौमों पर उरूज और ज़वाल कैसे आता है. तो एंटीसेमिटिज्म था ये. यहाँ पर आप देखिए उस जमाने का एक और फोटोग्राफ है जहां पे एक बोर्ड लगाया हुआ है नाजीज ने जूइश स्टोर पे, डिफेंड योरसेल्फ, डू नॉट बाय फ्रॉम जर्मन शॉप से कुछ मत खरीदना. ऐसा बोर्ड आपको आजकल दुकानों पर तो नहीं दिखता, लेकिन सोशल मीडिया के बड़े जहर में डूबे हुए मैसेजेस में आपको ऐसा मैसेज मिल जाएगा आपकी कौम के लिए. उस जमाने में जो ट्राम चला करते थे, उस जमाने में जो बसेस चला करती थी, उनमें ये लिखा होता था दैट देयर वाज अ सेग्रीगेटेड पोर्शन जहां ज्यूज को खड़ा रहना पड़ता था. दे वर नॉट अलाउड टू इवन सिट. आज ये 1.16 करोड़ है, पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पे, पूरी दुनिया की एजुकेशन पे, फाइनेंसेस पे इनका कब्जा है. कैसे कब्जा है उस पर आने से पहले देखिए क्या आपको आपकी कम्युनिटी का कोई पैटर्न यहाँ दिखाई देता है. These are the days that we rotate amongst communities so that we can cleanse and purify.
so that we can bring the best amongst you. And if you have received a blow, then remember that they too have received a similar blow. आपकी मस्जिदें जलाने की बात की जाती है, उनके सिनेगॉग्स को जलाया जा चुका है, उनके सिनेगॉग्स को जलाया गया। ये जर्मनी में जल रहे एक सिनेगॉग की तस्वीर है, ये पोलैंड में जल रहे एक सिनेगॉग्स की तस्वीर है। ये दंगों की सुबह है, वो अपना बिखरा हुआ सामान समेट रहे हैं, उसमें से जो कुछ वो ले जा सकते हैं एक नई झोपड़पट्टी की तरफ, वो उसमें बिन रहे हैं। उनकी झोपड़पट्टियों को बार वायर्स और दीवारों से चारों तरफ से घेर दिया जाता, अंदर रह रहे बच्चों के दिल ना टूटे। उसलिए पैलेस्टीन के फादर जैसे आज बड़े ईमान अफरोज वाकई अपने बच्चों को सुना के उनका दिल बड़ा करते हैं, ज्यूज ने भी कभी ऐसा किया था। और एक चीज उन्होंने मेक श्योर की थी, जो हमारी कौम को मेक श्योर करना पड़ेगा, ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, ज्यूज उसे लिख लिया करते थे ताकि अपने आने वाली कौमों को, अपनी आने वाली नस्लों को इंस्पायर कर सकें, दे कैन कीप देम ऑन देयर टोज। उसके बाद इस तरह के मैंने बहुत सारे राइट्स एरियाज में जब काम किया है तो देखा है दैट यू आर फोर्स्ड टू रिलोकेट टुवर्ड्स अ गेट्टो। और गेट्टो क्या होता है, स्लम क्या होता है, आप किसी भी मुसलमान बहुल इलाके में जाकर देख सकते हैं, वो नालों के दोनों तरफ बसा होता है, या वो सिटी का सबसे गंदा एरिया होता है जहां आपको टेंट लगाने दिए जाते हैं। पॉवर्टी इस कदर ज्यादा थी दैट देयर चिल्ड्रन वर फोर्स्ड इनटू लेबर। 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, जब भी ये खुलेगा देखना, लॉकडाउन लगने और इकोनॉमी क्रैश होने और माशियत क्रैश होने से एक चीज होती है, योर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन द वर्कशॉप, योर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन द गेटोज। एंड देन हिटलर डिसाइडेड टू डू विद देम जो कि अल्लाह ने अभी तक हमको बचाया हुआ है। क्यों? अल्लाह पाक कुरान की एक आयत में कहता है जिसका मफहूम ये है, बेशक तुम्हारा रब नाइंसाफ नहीं है, वो उन बस्तियों पर कभी अजाब नहीं लाता जो अपने आप को बदलने की जद्दोजहद शुरू कर दे। और बेशक ये कौम जितना जवाल आया उस कदर वो बदली है, उनके दिल और दिमाग में वो तब्दीली आ चुकी है। दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ करेक्ट डायरेक्शन इन विच दे स्टार्ट मार्चिंग। एंड टुडेज लेक्चर, टुडेज वेबिनार so much early in the morning is all about that direction. हिटलर की नाजी पार्टी का यह सिंबल है, एक अग्रेसिव स्वस्तिक था। आपके कुरान को जलाने की बात की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसका मुहाफिज है, पर इनकी किताबों को जलाया गया था। दिस इज अ फोटोग्राफ जिसमें इनकी रिलीजियस बुक्स को फेंका जा रहा है। ये होलोकॉस्ट कहते थे नाजीज इसको, अ सैक्रिफाइस है कंज्यूम्ड बाय फायर, डिस्ट्रक्शन बाय फायर। तो ये जवानों को जमा करते एक घर में, और घर में जमा करके उस घर को आग लगा दी जाती है ताकि वो सारे बच्चे उसी के अंदर जल जाए। यहां से उठकर इजराइल पहुंचाए, आज जहां भी पहुंचा है। आज हम रोहिंग्यास के चित्तगोंग में चले जाएं तो वहां ऐसे स्टोरी बताने वाले लोग हैं जो हमें म्यांमार से ये बात बताएंगे कि ऐसा उनके जवान पीढ़ियों के साथ म्यांमार में हुआ है। अगर इजराइल यहां से उठ सकता है तो हम अल्लाह की महबूब कौम है, थोड़े से स्ट्रेंथ के साथ इनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके अपने रब के खौफ को दिल में रखकर हम भी उठकर खड़े हो सकते हैं। इनकी बच्चियों के साथ रेप किया जाता है, ये एक फील्ड में बच्चियों को रेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और जब रेप हो जाते तो इन्हें बरहना करके पीछे से गोली मारी जाती है। ये नाजीज गोली मार रहे हैं फीमेल्स को लार्ज पैमाने पे। अल्लाह ने अभी तक आपको इससे हिफाजत में रखा है। क्यों? क्योंकि आपने लिटरली दिल और दिमाग में ये फैसला कर लिया है कि हम अपने अमाल को बदलेंगे। ये इनके नौजवानों को पीछे से गोली मारी जा रही है, उनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा है। ये उनके एग्जीक्यूशन के लिए जंगलों में ले जाकर कहाँ किसे मारा गया, कितने तो लोगों का पता ही नहीं है। ये इनकी मास ग्रेव्स हैं, पीछे से आप देखिए गोलियां चल रही हैं, इनको गोलियां लग रही थी, ये ग्रेव्स में गिर रहे थे। और इन्हें खाने के लिए आलू की पीलिंग्स दी जाती है, आलू के छिलके दिए जाते हैं। जानते हैं क्यों? आलू के छिलके और पानी, एक महीने में 28 से 30 किलो इनका वजन कम होता है। These are the days that we rotate amongst communities. And if you have received a blow,
then remember that they too have received a similar blow. Do not lose heart, do not agree, you will be victorious. ये इनके कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, इसमें इनके बच्चों को रखे जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपके पास तस्वीर होगी, उसको इससे मिलाकर देखिए, जो उस कौम का हाल था आज इस कौम का हाल है। इनके बालों को काट के रखा जाता कालीन बनाने के लिए। क्यों? इनके बालों को जब लोग अपने पैर से कुचलते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता। वो पैर से जब हिटलर उसको घसता था तो उसको दिल में बहुत अच्छा लगता था। इस दर्जे की नफरत इनसे की जाती थी। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तस्वीरें हैं, ये जले हुए मारे हुए ज्यूज के पैरों का, उनके शूज का, पैरों में पहनने वाले शूज का पाइल है। ये उनके सोने की जगहें हैं। इस इंसान को आप देख रहे हैं, इसने बाद में जाकर नोबेल प्राइज जीता है। ये उनकी रिंग्स हैं, जो रिंग्स उनको पहनाई जाती थी। ये उनके कपड़े हैं और ये उनकी मास ग्रेव्स है। ऐसा भयानक आपने कभी नहीं देखा होगा। और ज्यूज से ज्यूज की बॉडियां जलवाई जाती हैं, ज्यूज से ज्यूज की बॉडियां ये जलवाई जाती। मैं चाहता हूं कि आप इसको नक्श कर लें कि कोई कौम कहां से उठकर कहां तक जा सकती है। सिर्फ उसके अंदर एक विल पावर की बहुत जरूरत है। एंड दिस इज हाउ द ग्रेव्स वेयर। कैन यू इमेजिन आज इजराइल कहां पर है और कभी कहां पर था। एंड देन द इजराइलीज, दिस वाज व्हाट वाज डन विद देम एंड दीज आर द सर्वाइवर। आप उनकी हालत देखिए, सर्वाइवरशिप के नाम पर कुछ नहीं बचा। उनकी लाशें देखिए, उनकी मास ग्रेव्स देखिए। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो कहां पर है। वेयर हैव दे रीच्ड। जब ये अमेरिका पहुंचे हैं, वहां जब ये पहुंचे हैं तो इन्होंने वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहा, एक रैली निकालनी चाहिए, जिस रैली में ये चाहते थे कि ये जो बड़ा ही बेइज्जती भरा लिखा हुआ है that the dogs and the Jews are not allowed, इसे हटाया जाए। हमें यहाँ पर रिफ्यूजी शिप मिलना चाहिए। अमेरिका में इनका जो रबाई था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखो, पत्थर मत चलाना, डेमोन्स्ट्रेशन में आग मत लगाना, वायलेंस मत करना। इस वायलेंस को अंदर घोट जाओ और इस देश के एजुकेशन, फाइनेंस और रिसर्च, इन 3 चीज पे कब्जा कर लो। ये देश पूरा तुम्हारे आगोश में आ जाएगा। बाद में ऐसा भी हुआ कि इन्होंने जब बहुत तरक्की हासिल कर ली, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, और कैसे हासिल की वो बताने जा रहा हूं। जब इन्होंने बहुत तरक्की हासिल कर ली तो इन्होंने हीरे का कलेक्शन किया, डायमंड्स का, और डायमंड्स का कलेक्शन करके ये अपने रबाई के पास आए। उन्होंने कहा कि योशुआ ने, इनके अल्लाह ने, योशुआ ने हमसे जो वादा किया था वो हो गया, तो क्यों ना इन डायमंड्स की एक इबादत गाह बनाई जाए। हम इतने अमीर हो चुके हैं, जिनके पास खाने को नहीं था ब्रेड की पिलिंग्स के अलावा, हम इतने अमीर हो चुके हैं कि हम अपने योशुआ को एक डायमंड का सिनेगॉग बना के देना चाहते हैं। बट रबाई वाज अ मैन ऑफ विजन। उसने इनके डायमंड्स ले लिए और इनसे कहा, तुम जानते हो डायमंड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्टोन इन फ्रंट ऑफ योशुआ। योशुआ के लिए एक पत्थर है, तो इन डायमंड्स को बेचकर क्यों ना हम एक किताब खरीदें और एक लाइब्रेरी मूवमेंट चलाएं। This was the first thing that you, the educationists, shall note today. इजराइल में फिर ये चीज हो गई, उनकी हिस्ट्री में लिखा है कि जब बच्चा रोता तो माँ उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा बाद में देती, पहले एक किताब पढ़ाती, पहले एक किताब पकड़ाती और पढ़ाती। और ऐसे करते करते रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा भी कैसे, द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स दिखाऊंगा भी कैसे, और पूरे जमाने का फाइनेंस इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अक्टूबर वार हुआ था जो 1973 में, उसके बाद वॉशिंगटन ने, जो नाक पर ऐसे हाथ रख के ज्यूज के साथ पेश आता था, वॉशिंगटन हैज प्रोवाइडेड इजराइल विद अ लेवल ऑफ सपोर्ट जो उसने किसी और को नहीं दिया। कौन सा लेवल ऑफ सपोर्ट? डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस इतना ज्यादा दिया है कि इजराइल इज द लार्जेस्ट टोटल रेसिपिएंट ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस। और पढ़ाई ये किससे आपका दर्जा उठाती है वो आगे आएगा। पहले आप देखिए ये थे क्या और ये अब क्या हो गए हैं, फिर बताता हूं ये कैसे हुए।